board which तो only बता exists रही on the papers, which doesn't have sufficient instructions and orders which can be implemented, and they're just like a puppet board. It means They follow the rules. no, They only follows the accounting rules. no. Paper board basically means Gigi, please. सब पेपर बेस ही डायरेक्टर्स होते हैं, इसलिए इनका कोई रोल नहीं होता कंपनीज के डिसीजंस हो। वेरी राइट। जो है ना कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की हद तक जो है ना लोगों को क्या कर दिया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया जाता है जो है उसमें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लीगल रिक्वायरमेंट है जी कि आपके पास 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो 3 बंदों को जो है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के तौर पे बोर्ड मेंबर शो कर दिए। अब एक्चुअली वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, या बोर्ड मीटिंग्स में आते हैं नहीं, इफेक्टिवली रोल प्ले करते हैं नहीं करते, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी जो है उसमें। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए या जो आपकी कंप्लाइंस है उसको जो है इंश्योर करने के लिए जो है ना कुछ लोगों को बोर्ड मेंबर शो कर दिया जाता है, बट एक्चुअली दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। तो ये पेपर बोर्ड है, मींस सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं, रियल टाइम उनकी कोई फंक्शनिंग नहीं होती जो है ना उसमें, ठीक है जी। तो ऐसे बोर्ड्स को पेपर बोर्ड कहा जाएगा। वो किसी बात है कि अब जब इस किस्म की सिचुएशन होगी जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो परफॉर्म क्या करेगा, उसकी इफेक्टिवनेस तो वैसे ही जो है ना वो खत्म हो जाती है जो है उसमें। ओके जी, देन देयर इज अनदर वन व्हिच इज नोन एज ट्रॉफी बोर्ड। ये क्या होते हैं? स्टार्स वगैरह अगर कोई किसी कंपनीज में डायरेक्टरशिप उनको दे दी जाती है, ठीक है, वेरी गुड। जो सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं, उन सेलिब्रिटीज को जो है ना अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रख लिया जाता है, जस्ट टू बिल्ड द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, जस्ट टू बिल्ड द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, के इतने बड़े बड़े नाम जो हैं, इतने बड़े बड़े लोग जो हैं वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो बोर्ड होगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ ट्रॉफी बोर्ड जो है ना उसमें, ठीक है, विच इज फिल्ड विद स्टार, विच इज फिल्ड विद the celebrities, which is filled with the people who are very famous, just to build the profile of the company, ताकि ये लगे कि जी कि बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो इसका जो है ना वो हिस्सा है जो है ना उसमें, ठीक है जी। बट द रियल थिंग इज दैट मोस्ट, ठीक है, ऑफ द बोर्ड्स, ठीक है, दैट एग्जिस्ट are unable to perform their duties if they are a part of any one of these boards. ऐसी है ना जी? Yes sir, बिल्कुल ऐसे ही। जी सर। So ठीक है, so there are different types of the boards. There could be good, bad or ugly, but the thing that depends is that the people who are actually formulating that board, means the board, the shareholders of the company, what's their intent is. If their intent is just to fulfill the formalities, they may have a paper board. If they just want to acknowledge the people who have good relationship with them for a longer period of time, they can make a good old boys board. If they want to have those people in the board who should not question what they are basically saying, or they should simply endorse their decisions, so they can have the yes men or the rubber stamp boards. And if they want to make their board very you can say looking very good, in terms that very big celebrities or the famous people are a part of the board of directors, then they can go for the trophy boards. But if they want to make it effective, if they want to make it independent board, and if they want to make a balanced board, all it depends is that the shareholders should appoint those people who can work effectively in the board of directors, Jonas, because these are the people who would serve their interest or protect their interest. So it's up to them who they basically they appoint Jonas में। अब वो HR के अंदर हम कहते हैं ना कि right person for the right job. So if you have appointed the right person, then obviously he or she would perform the job in the right way. But if you have selected a wrong person and you are expecting that he or she would perform good, then obviously it could create a problem Jonas में। Okay जी, then moving forward. Excuse me sir, the last one, the real thing, kindly repeat it. Real thing is that it all depends on the decision of the shareholders, that which type of the board basically they prefer for themselves, you know, because at the end of the day, they are the one who are electing the board of the directors.
So if the shareholders want such kind of the boards which are ineffective, which are rubber stamp board, which are just yes man board, or which are just paper board, then obviously it would affect the performance of the company. And if they want to have the effective boards, then obviously they have to elect those people who are independent, who are expert, who have good reputation in the market, who are unbiased, who can be fair to their companies. So by appointing the right people or the good people, they can ensure that board effectiveness is good जो है ना उसमें. तो ठीक है, बोर्ड की परफॉर्मेंस तो इफेक्ट करेगी, लेकिन बोर्ड को कौन अपॉइंट करेगा? इट इज द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. तो शेयर होल्डर्स अगर सही डिसीजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है ना वो कंपनी परफॉर्मेंस पे आएगा जो है ना उसमें. ठीक है जी. Thank you, sir. बोर्ड की इनइफेक्टिवनेस बेसिकली जो है दैट इज इनइफेक्टिवनेस ऑफ द शेयर होल्डर्स, दैट दे हैवंट अपॉइंटेड द गुड पीपल जो है ना उसमें. देन द पावर्स ऑफ द बोर्ड, सोर्सेज ऑफ द पावर, कहां से उनके पास पावर आती है? कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली बाय लॉस होते हैं कंपनी के, जिसके अकॉर्डिंगली जितनी भी जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं. तो उन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दिए जाते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये डिसीजन करने के जो है ना वो राइट्स हैं, उनके पास पावर्स हैं. द लॉ, जैसे हमारे जो है ना कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है, तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो है, जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2002 या रिवाइज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ 2012, उसके अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी राइट्स, पावर्स और ड्यूटीज जो है ना वो डिफाइंड है. तो लीगली जो है ना इनके पास जो है ना वो पावर आ जाती है. एंड रेजोल्यूशन पास बाय द शेयर होल्डर, और समटाइम ऐसा भी होता है सकता है कि शेयर होल्डर्स ये पावर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दें कि कोई भी डिसीजन जो कि कंपनी रिलेटेड है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर है कि उसको वो कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम भी किया था कि शेयर होल्डर जो है ना जो क्लास 1 ट्रांजैक्शंस हैं उनकी अप्रूवल वो खुद दें. मींस जो लार्जर ट्रांजैक्शंस हैं, जो हैवी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी अप्रूवल बोर्ड जो शेयर होल्डर्स हैं वो देंगे. लेकिन अगर शेयर होल्डर्स ये अप्रोप्रिएट समझते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इफेक्टिव, तो वो पावर जो है वो क्या कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स को डेलीगेट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डेलीगेट कर सकते हैं कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट देयर आर क्लास 1 ट्रांजैक्शन, देयर आर हैवी ट्रांजैक्शन, देयर आर बिग ट्रांजैक्शंस, बट दीज बिग ट्रांजैक्शंस, द अप्रूवल ऑफ these ट्रांजैक्शंस कैन बी गिवन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू भी हो सकता है. ठीक है, तो जो कंपनीज ऑर्डिनेंस है उसके थ्रू उनके पास पावर है. कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके थ्रू जो है ना उनको जो है ना उनकी जो पावर्स हैं ले डाउन कर दी जाती हैं. और समटाइम स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू भी कुछ पावर्स जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी जाती हैं, जिसके जरिए वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो है वो डिसीजंस को टेक अप कर सकते हैं. बाय एंड लार्ज द एब्सोल्यूट पावर्स, ठीक है, आर वेस्टेड इन द डायरेक्टर्स. द कलेक्टिव पावर्स में बी डेलीगेटेड. जो है ना ज्यादातर ऐसे ही होता है कि जो डिसीजंस होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ले रहे होते हैं. जो शेयर होल्डर्स है सिर्फ उनकी जो है वो अप्रूवल दे रहे होते हैं, तो पावर की डेलीगेशन उनको जो है ना वो होती है. द इशू ऑफ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल पावर, अब मसला जो आता है वो पावर गेम का आ जाता है. अब ओवरऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास तो पावर है, लेकिन मसला ये है कि कलेक्टिव और इंडिविजुअल पावर का जो है ना वो किस तरह से जो है ना वो बैलेंस किया जाए. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड जो है ना उसमें. एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं हु आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. Non-executive directors who are not the employees but they are attending the board meetings, and then the member of the board committees. Board की committees का मतलब है audit committee हो सकती है, remuneration committee हो सकती है, या इसी तरह से nomination committee हो सकती है. different board की further जो है ना वो committees होती हैं. तो अब जो लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनके पास वो चाहते हैं पावर ज्यादा हमारे पास हो. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है ना दे वांट टू एंजॉय द पावर. जो लोग बोर्ड में भी हैं और बोर्ड की सब कमेटी के अंदर हैं वो लोग भी चाहते हैं कि पावर हमारे पास होनी चाहिए. तो ये जो पावर गेम है, इस पावर गेम की वजह से डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट सम टाइम बोर्ड इज वेरी पावरफुल, बट आपस में उनके अंदर जो है ना वो पावर की जो है ना डाइल्यूशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो शायद अपनी पावर को इतने अच्छे तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सकते जैसा कि करना चाहिए. फॉर एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन पे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो है ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स किसी और चीज की फेवर में है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स किसी और चीज की फेवर में, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसकी पावर को खुद ब खुद क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे. जैसे आजकल आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज में जो है ना वो चल रहा है, तो आपस में वो ज्वाइन भी कर लेती हैं हैंड्स, फिर आपस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो है ना वो साइड लाइन हो जाती हैं.
तो ऐसी सिचुएशन की वजह से जो उनकी अपनी पावर है वो खुद ब खुद ही जो है ना वो डाइल्यूट हो जाती है. After the powers of the board, there are certain functions of the board. Oversight function, directional function, and advisory function जो है ना उसमें. हाँ जी, can anyone tell me that what are these functions? What do you mean by advisory, oversight function, and then directional function? तो जैसे आपने बताया कि डायरेक्टर्स ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं मैनेजर्स के लिए कि कौन से गोल्स अचीव करने हैं. उसके बाद अगर उनमें कोई उनको फिर अचीव करने के लिए वे भी बताते हैं कि कैसे अचीव करने हैं गोल्स. और फिर इन द एंड रिजल्ट्स में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो पॉइंट आउट करते हैं कि उनको रिजल्ट्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है. ठीक है, तो इसमें से ओवरसाइट फंक्शन कौन सा होगा? ओवरसाइट फंक्शन सर जो आपने डायरेक्शंस दी हैं उनको चेक करना कि मैनेजमेंट उनको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही. ओके, ठीक है, थैंक यू हामिद जी. एनीवन एल्स? सर सीएफओ की जो फंक्शंस होते हैं कि आपने जो है गाइड कैसे करना है और एडवाइस कैसे करना है, इनको हम ओवरसीट फंक्शंस कहते हैं. अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि सजाद से, सजाद अली, आपका क्या ख्याल है? व्हाट डू यू मीन बाय ओवरसाइट फंक्शन? सर मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा, मेरे जहन में उसका मतलब नहीं सर था. जी, ओवरऑल इंडस्ट्री की जो ओवरलुक होती है कि इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना. फॉर एग्जांपल बहुत अरसे से कोविड की वजह से कंस्ट्रक्शन रुकी हुई थी, तो सबने सीमेंट इंडस्ट्री में इसलिए इन्वेस्ट किया था कि आपकी ट्रेजरी उस साइड पे चले. मतलब ओवरसाइड वो हिडन चीजें या वो ग्रोथ के प्रोसेस जो ओवरलुक हो जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे ओवरसाइट जो है ना फंक्शन का मतलब ये है कि वो क्या कर रहे हैं, एक मॉनिटरिंग रोल जो है ना वो प्ले कर रहे हैं. देखिए हमने क्या कहा, सर पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करना कि उन कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया और उनको आगे से फिर बताना कि आगे फर्दर जो है उनको क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है, क्या चेंजिंग्स लेकर आनी है. और एडवाइजरी बेसिकली के कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंज आएगा और उसके अलावा जो है मैनेजर्स को जो है न्यू कौन कौन सी जो है डायरेक्शंस जो है दिखाना. दैट इज एडवाइजरी. ठीक है, अगर देखिए ओवरसाइट इस पर्सपेक्टिव में है कि एक मॉनिटरिंग रोल है. तो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस है दैट इज टेकन केयर और लुक्ड आफ्टर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टली क्या कर रहे होते हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं. और व्हाटसोएवर द मैनेजमेंट इज डूइंग दे आर रिपोर्टिंग इट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये बेसिकली ओवरसाइट फंक्शन है कि जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो उनकी एक्टिविटीज हैं, दे आर बेसिकली लुक्ड आफ्टर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्शनल ऐसे जैसे हामिद ने कहा कि फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि दे सेट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. अब जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए एक डायरेक्शन जो है ना वो प्रोवाइड कर दी. अब मैनेजमेंट क्या करेगी, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करेगी, या वो डिफरेंट प्लान्स जो है ना वो उनको क्या करेंगे, बनाएंगे ताकि उन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया जा सके, अचीव कर दिया जाए. और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन प्लान्स की अप्रूवल देंगे तो इसका दे आर एक्टिंग एज एन एडवाइजरी फंक्शन. उनको जो है ना हेल्प आउट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि ये वे आउट हो सकते हैं, ये पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं जिनके जरिए से हम इनको जो है वो अचीव कर सकते हैं. तो ओवरसाइट फंक्शन बेसिकली इंक्लूड अप्रूविंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ दी स्ट्रेटेजिक प्लान्स. अगर आप रिकॉल करें तो हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट का जो डिफरेंस देखा था, तो हमने कहा था कि इन केस ऑफ मैनेजमेंट दे प्रिपेयर दी प्लान्स वेयर एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्स दी प्लान्स. तो उन्होंने क्या करना है, जितने भी प्लान्स हैं जो कि मैनेजमेंट ने बनाए हैं उसकी अप्रूवल भी करनी है और उसकी फिर मॉनिटरिंग भी करनी है कि आइदर दीज प्लान्स आर इफेक्टिवली implemented or not. Then the approving and monitoring of the annual plans, which includes the operational and capital budgets. Whatever the budgets that are being prepared by the management, that would be approved by the board of directors. Not only approved, but rather this would be monitored by the board of directors, including the different operational activities which are also being planned by the management. Then they engage with the external auditors. अब external auditors के साथ engage होने का क्या वजह होती है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनेजमेंट ने प्रिपेयर की है, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो है ट्रू और फेयर रिप्रेजेंटेशन है वो सामने आ सके.
तो अगेन ऑडिटर्स एक्ट एज वॉच डॉग्स। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके साथ मिलकर जो मॉनिटरिंग रोल है उसको जो है ना वो perform करने की कोशिश कर रहे होते हैं। देन इंश्योरिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द एनुअल रिपोर्ट्स, कि वो जो परफॉर्मेंस जो वहां पे रिफ्लेक्ट हुई है उसके अंदर कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं हुई हो जो है ना उसमें, उसके अंदर जो है ना वो कोई जो है ना वो कहते हैं कि जी के एक बेटर रिफ्लेक्शन जो है ना वो नहीं है, ये वो कहते हैं कि it does not shows the rosy picture of the business organization, means whatever the actual performance of the business organization is, that is being reflected in the books of accounts. तो क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने अच्छा ना परफॉर्म किया हो फिर भी उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा रिपोर्ट कर दिया जाए? ऐसा पॉसिबल है? सर पॉसिबल है। जी कैसे? सर पॉसिबल है जी कैसे? सर अकाउंटिंग में एक टर्म यूज होती है विंडो ड्रेसिंग। सर। अगर देखें जैसे यस, विंडो आप ड्रेसिंग सर, अपनी डमी चीजों को जो है आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करें, फॉर एग्जांपल क्या करें? लाइक रिजर्व। डमी सर रिजर्व। रिजर्व सर हुकूमत ऐसे ही करती है कि सर जैसे है ना वो कि किसी हेड में कंप्यूटर बजट से कम है रखेंगे किसी भी हमको कंपनी के पास, और उस हेड में उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सीड किया है। लाइक हम कह लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने बहुत ज्यादा बजट इस्तेमाल किया, उतना था नहीं। अब वो एक्सपेंसेस कम शो करने के लिए हो सकता है कि इस साल वो उतना शो करें जितना बजट है, बाकी को आगे कर दें। अच्छा चलें ठीक है। अब ये जो नॉन फाइनेंस वाले लोग हैं फिर बीच में परेशान हो जाएंगे, कौन सी बातें करने लग जाए। तो ये सिंपली ये बताएं, वांट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते सर रेवेन्यू और इसमें एक्सपेंसेस को कंपेयर। मैनेजमेंट अक्सर ये करती है कि ऐसी सेल्स जो जिनकी अभी रिकवरी नहीं भी हुई होती हैं? उनको भी मतलब रिसीवेबल्स होते हैं आपके, नहीं तो ठीक है वो उनको भी इसी साल की सेल वगैरह में डाल के वो शो कर देती है अपनी नहीं, परफॉर्मेंस, सेल को बूस्ट कर देती है। उसमें तो कोई Sir, in a layman language, if you want to calculate the profit and loss, you will simply subtract your expenditures from the income and you'll get the profit or loss, whatever the case is. वेरी राइट। इससे पहले आदिल वो कह रहे थे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ऐसी सेल्स जो कि अभी तक आपको रिकवर सेल्स के तौर पे रिकॉर्ड कर देना, तो जो एक्रूअल बेस अकाउंटिंग है उसके अकॉर्डिंगली ये परमिसिबल है कि आप क्रेडिट सेल्स को रेवेन्यू के तौर पे जो है ना रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी वजह से जनरली अकाउंटिंग के अंदर जब आप कैश सेल्स करते हैं तो ट्रांजैक्शन होती है कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, सेल्स अकाउंट आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो आपके अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो उस सिचुएशन के अंदर आपका अकाउंट रिसीवेबल एसेट इंक्रीज होता है, दूसरी साइड पे सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। तो अब इस सिचुएशन में बिल्कुल परमिसिबल है कि आप क्रेडिट पे सेल्स करें और उसको अपने रेवेन्यू के तौर पे जो है ना वो शो कर दें। अब प्रॉफिट एंड लॉस, एज समवन सेड दैट इन सिंपल लेमैन लैंग्वेज, इट इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें। ठीक है, revenue means the gross receipts or it is the price of goods sold or services rendered. आपने एक कंप्यूटर सिस्टम सेल किया, एक लैपटॉप सेल किया 1 लाख का, तो आपका रेवेन्यू जो है वो 1 लाख रुपीस है। आपने एक कार सेल की 50 लाख रुपीस की, तो आपका रेवेन्यू जो है 50 लाख रुपीस है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, एक पर्टिकुलर ईयर में जितनी भी आपने सेल्स की हैं उनकी जो टोटल वैल्यू बनती है दैट इज रेवेन्यू। इसमें से हम क्या करते हैं, इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितनी अमाउंट हमने स्पेंड कर दी है, जिसका बेनिफिट हम यूज कर चुके हैं, दैट इज नोन एज एक्सपेंस। तो by deducting the expenses from the revenue of any business organization, we get the profit or loss. The situation is that if the revenue of a company is greater than expense, तो फिर उस सूरत में प्रॉफिट हो गया लॉस? Profit, sir. बिल्कुल प्रॉफिट होगा जो है ना उसमें। ठीक है, इफ रेवेन्यू इज ग्रेटर एक्सपेंस इट इज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हाट इफ इट इज द अदर वे अराउंड, इफ रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंस? लॉस। लॉस हो जाता है। वेरी गुड, इट वुड बी द लॉस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि दो तरीके से हम जो है ना ये प्रॉफिट लॉस को इफेक्ट कर सकते हैं, रेवेन्यूज के जरिए और एक्सपेंसेस के जरिए। तो फॉर एग्जांपल इन अ पर्टिकुलर ईयर वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट,
तो प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, या तो रेवेन्यू को इंक्रीज करेंगे या एक्सपेंसेस को हम डिक्रीज कर लेंगे। अगर एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा जो है उसमें। ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर। अब देखें, फॉर एग्जांपल कंपनी के पास ये डिस्क्रिशन होती है कि वो अपने एडवर्टाइजिंग बजट को जो है ना वो कट डाउन कर सकें या उसको इंक्रीज कर दें। तो अब किसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी अपने प्रॉफिट को ज्यादा शो करना चाहती है तो इस साल वो अपना एडवर्टाइजिंग बजट जो है ना या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर जो है उसको कट डाउन कर लेते हैं। वैसे नॉर्मल रूटीन में 5 मिलियन जो है ना वो यूटिलाइज करते थे एडवर्टीजमेंट के लिए, इस साल सिर्फ उन्होंने 2 मिलियन यूटिलाइज किया। तो इसका मतलब है वो जो 3 मिलियन उन्होंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कम किया, तो 3 मिलियन एक्सपेंस कम होने से जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, 3 मिलियन से इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। अब एक पॉलिसी डिसीजन के जरिए क्या किया, ये इससे कोई परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुई, लेकिन कंपनी ने क्या किया कि इस साल अपनी जो है ना इस एक एक्टिविटी को कट डाउन करके अपने प्रॉफिट को क्या कर लिया, इनहेंस कर लिया। तो बिल्कुल पॉसिबल है। इसी तरह कंपनी ने अपना R&D बजट कट डाउन कर दिया। R&D बजट कट डाउन करने से क्या होगा कि कंपनी का जो है ना एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, प्रॉफिट जो है ना वो बढ़ जाएगा। कंपनी ने मेंटेनेंस करवानी थी, मेंटेनेंस के बजट को कम कर दिया जिसकी वजह से ओवरऑल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ, प्रॉफिट जो है ना वो इंक्रीज हो गया। इस सारी सिचुएशंस की बेसिस के ऊपर क्या हो रहा है कि कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, बल्कि सिर्फ क्या कर रहे हैं, नंबर्स गेम की वजह से अपने प्रॉफिट को जो है वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर हुई हैं जिसमें प्रॉफिट शो हो रहा है और हाई प्रॉफिट शो हो रहा है, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस की वजह से हो, ना कि सिर्फ नंबर्स गेम की जो है ना वो चेंजिंग की वजह से जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छा या बुरा जो है ना रिप्रेजेंट कर दिया जाए। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड। और सेकेंडली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के चैप्टर के अंदर जाके ये अर्निंग्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वहां इंशाल्लाह इसकी टाइप्स भी डिस्कस कर लेंगे और बेस भी डिस्कस करेंगे, इसके अलावा क्या हो सकते हैं प्रॉफिट को जो है ना मैनिपुलेट करने के लिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली प्लेज अ रोल to ensure that the integrity of the annual reports is there, means the true and fair representation of the books of accounts is presented to the stakeholders of the business organization. And then they review the major operational activities. So this is the oversight function. Oversight function basically includes the approving and monitoring of the different activities of the management. Is it clear, Ji? Yes, sir. Okay, then directional function. सर ये भी कह सकते हैं कि अकाउंटिंग रूल्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली फॉलो होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है जो है ना, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन कंसिस्टेंटली तो उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स there is a consistency principle which says that the accounting policies should be consistently followed, but there is a room available कि अगर किसी भी ईयर में आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से डिक्लाइनिंग बैलेंस के ऊपर जाना चाहती है तो कंपनी कैन डू इट, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर साल ही चेंज करना शुरू कर दे। पहले स्ट्रेट लाइन से डिक्लाइनिंग पे गई, उससे अगले साल डबल डिक्लाइनिंग पे चली गई, उसके अगले साल सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड के ऊपर चली गई, चौथे साल फिर दोबारा स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलेगी। ऐसा नहीं होगा। दूसरा ये है कि ये जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं ये भी कंपनीज नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डिटेल के अंदर स्पेसिफाई करती हैं, और उसके अंदर ये स्पेसिफाई करती हैं कि अगर ये पॉलिसी चेंज ना होती तो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती, और अगर ये कंपनी की पॉलिसी चेंज हुई है तो उस चेंज की वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट कितना आया है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम द रीडर ऑफ द एनुअल रिपोर्ट्स डू नॉट go into those nitty-gritties detail information, और वो उसके सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो है ना हद तक रह के उस इंफॉर्मेशन को जो है ना मिस कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, बट वी रेयरली बॉदर टू रीड दोज टर्म्स एंड कंडीशन, बल्कि हम तो ज्यादा अच्छा जो है ना बैंक या सर्विसेज उसकी कंसिडर करते हैं जो सारा फॉर्म फिल आउट करके और हमें सिर्फ कह देते कि सर यहाँ प्लीज साइन कर दें तो हम आपका अकाउंट जो है ना वो ओपन कर दें। तो वो ऑल द डिटेल इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द एनुअल रिपोर्ट्स, बट एज अ यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द एनुअल रिपोर्ट समटाइम वी डू नॉट एक्चुअली रीड दैट इंफॉर्मेशन केयरफुली, तो हमसे जो है ना ओवरसाइट हो जाती है, अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन तो वहाँ वो प्रोवाइडेड होती है। Then directional function means the board basically sets the mission, vision
and the value statement of the company. They appoint the CEO and the other senior management. They perform the planning of the success for the succession of the senior executive. What do you mean by the succession planning? सर सीनियर मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं वो. The succession planning for the later half in the years to come, the next year. ठीक है, बेसिकली आपकी किसी भी पोजीशन के लिए नेक्स्ट फॉर जो लोग हैं उनके लिए आप क्या करते हैं, प्लान करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई डायरेक्टर फाइनेंस है जो है ना, तो उनके नीचे जो है ना हो सकता है डिप्टी डायरेक्टर जो है ना फाइनेंस काम कर रहे हैं, उनके नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस होंगे जो है ना उसमें. तो अब एज अ डायरेक्टर फाइनेंस जब डायरेक्टर ने रिटायर हो जाना है तो किसी ने तो टेक ओवर करना है ना एज अ डायरेक्टर फाइनेंस. तो जो डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस है उसको आपने ग्रूम करके उसको जो है ना अप्रूव करके डायरेक्टर फाइनेंस के रोल के ऊपर जो है ना मूव करना है. जी जी. Succession planning basically refers के that you are preparing the people to take up the next जो है ना वो high up jobs जो है ना उसमें. तो नॉर्मली वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू, जॉब रोटेशन के थ्रू, जॉब एनलार्जमेंट के थ्रू जो है वो क्या किया जा रहा होता है, लोगों को नेक्स्ट जो पोजीशंस है उनके लिए प्रिपेयर किया जा रहा होता है जो उसमें. देन अपॉइंटमेंट वेरियस कमिटीज लाइक ऑडिट, रिम्यूनरेशन एंड एग्जीक्यूटिव कमिटीज. डायरेक्शनल फंक्शन इज दैट दे आर प्रोवाइडिंग. जी जी प्लीज. Anyone wants to say something? सर वो मेरा ख्याल है माइक ऑन हो गया. अच्छा, कोई बात नहीं, खैर है. Then there is advisory function. Advisory function means they provide. जी जी. Advisory function means they provide the guidance to the management of the company. ठीक है. They provide the information that what's going on in the world, okay, because most of the management is just restricted to the affairs of the business organization only. They are least informed about what the things which are going on in the market or in the other companies. So since these directors are also a part of the management of the other companies, क्योंकि जनरली कंपनीज के अंदर क्रॉस डायरेक्टरशिप होती है. क्रॉस डायरेक्टरशिप का मतलब ये है कि एक डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी के अंदर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर हो सकते हैं, या एक सीनियर जो मैनेजर है वो दूसरी कंपनी के अंदर भी जो है ना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के तौर पे जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं. तो जनरली ऐसा होता है कि दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, दे शेयर देयर जो है ना वो नॉलेज, ठीक है, अबाउट दी अदर कंपनीज. तो अगर कुछ ऐसे जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर लोग हैं जो मल्टीनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड के अंदर बैठते हैं, तो ऑब्वियसली दे विल बी कमिंग अप विद द एक्सपीरियंस दैट ऑफ द थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन द इंटरनेशनल और एट द ग्लोबल सिनेरियो. तो वो दूसरे जो मैनेजमेंट है उसको उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं. दे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, because the management can have a different point of views, and the board of directors having a bigger knowledge of the things, they can have a better or the good perspective, and they can have specialized input about the specific areas of the business organization जो है ना, based on their specialization जो है ना उसमें. ठीक है. There are different tools which are available to make the board more effective. One is the composition of the board. जैसे हमने पहले भी बात कहा था कि जी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर सारे के सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, ये सारे के सारे फाइनेंस रिलेटेड नहीं होने चाहिए, सारे के सारे जो है ना वो मार्केटिंग रिलेटेड लोग नहीं होने चाहिए, सारे के सारे ही जो है ना लोग जो हैं वो मेल्स नहीं होने चाहिए, उसमें फीमेल्स भी होनी चाहिए, सारे के सारे लोग जो है ना वो यस मैन बोर्ड वाले भी नहीं होने चाहिए, और सारे ऐसे भी नहीं होने चाहिए जो कि हर बात के ऊपर ही जो है ना वो इख्तलाफ करने वाले हों. तो एक कंपोजिशन में आपने बैलेंस जो है ना वो क्रिएट करना है. देन इंडिपेंडेंस ऑफ द बोर्ड. जब बोर्ड को आपने बना लिया तो उसमें इंडिपेंडेंस इंश्योर करें. लेट देम हैव अ फ्री वॉइस इन द बोर्ड, लेट देम चैलेंज द डिसीजंस, लेट देम कम अप विद अ ट्रू एंड फेयर ओपिनियन फॉर द कंपनी, ताकि उसकी इंप्रूवमेंट हो सके. There are different committees of the board. तो बोर्ड खुद से तो सारे फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता, तो सब कमेटीज होनी चाहिए जो कि डिफरेंट डिसीजंस को जो है ना परफॉर्म कर सके. आप देखें ना, जैसे काबीना का जो है इजलास होता है तो उसमें बहुत सारे डिसीजंस के लिए कमेटीज बना दी जाती हैं.
इसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अगर वंस इन अ क्वार्टर हो रही है, 3 महीने के बाद उन्होंने मिलना है, तो एक मीटिंग में जो चंद आवर्स की होगी तो सारे डिसीजंस कैसे वो कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स को कैसे जो है ना वो केयरफुली जो है ना लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो व्हाट नॉर्मली दे डू इज दे हैव सब कमेटीज, जो सब कमेटीज क्या करती हैं कि सारा का सारा जो है ना वो काम परफॉर्म करती हैं और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने अपनी रिपोर्ट रख देती हैं जिसकी बेसिस के ऊपर वो डिसीजन कर सकते हैं। Then they get external help from where necessary. So just relying on the internal members is not enough. They can also approach the external members. And then there is government intervention. Sometimes government can intervene to make the boards more effective. जैसे कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, तो उस कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई कर दिया गया है जी कि बोर्ड के अंदर लेट्स सपोज 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब कंपनी भले चाहे या ना चाहे उनको 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है ना वो बोर्ड के अंदर जो है ना वो इंश्योर करने। इसी तरीके से उनकी जो एक्सपर्टीज है या क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड भी जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके अंदर डिफरेंट जो है ना वो गाइडलाइन जो है ना वो प्रोवाइड कर दी गई है। या जो आपकी जो इंडिपेंडेंस है उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जो है ना कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो है ना वो स्पेसिफाइड है। तो अब ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है अपनी इंटरवेंशन के थ्रू ये इंश्योर कर सकती है कि बोर्ड के अंदर जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं उनको इफेक्टिवली जो है वो इंश्योर कर सके। ठीक है जी, आई थिंक दैट्स इट, दैट्स मोर देन इनफ फॉर टुडे। Till now, Yes. if you have any confusion or if you want to ask anything, feel free to ask, please. Sir, was kindly book